Good morning, my dear students. So today we are going to start with a new chapter, that is what is democracy and why democracy. So basically this is the second chapter of civics, right? The first chapter of civics has been removed by CBSE. So no need to study the first chapter. So there are two simple questions written over here. What is democracy and why democracy? So first look at certain examples of democracy. And the question, what is democracy? So as all of you know that in present world there are lots of democratic country, like we have USA, we have United Kingdom, we have India, right? We have Italy, Germany, right? Poland, Austria, Australia. So these are the country which is democratic in nature, right? Okay. So we have to define it, right or not? What is a democratic country? We have to define it. But before defining it, we will learn why to define it. ठीक है? Define करना जरूरी क्यों है? So here one conversation is there in class between students and Lindo madam, right? So Mary, she is telling that I don't like this idea, right? First we spend time for discussing democracy and now we are discussing that why we should define democracy. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि डिफाइन क्यों करना चाहिए या फिर डेफिनेशन क्या है, बाद में हमें देखना चाहिए कौन कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी है. सो मैडम क्या बोल रही है, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नाउ हाउ वी रीजन. आज के समय में हम वैसे नहीं देखते अपने लाइफ को. फॉर एग्जाम्पल, डू यू टू यूज योर पेन, जो आपके हाथ में पेन है उसको यूज करने के लिए क्या आप पहले डेफिनेशन खोजते हो? डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेन? बट यू आर यूजिंग दिस पेन सिंस योर childhood, right or not? So many of you don't know the definition of pain, but you are using it, right or not? So just like that, democracy, we are in present day world, we know about democracy. Till now we don't know the definition of democracy, but later on we will know about it. Next, फिर मेरी क्या बोल रही है, तो फिर डेफिनेशन की जरूरत क्या है, राइट? पेन हम ऐसे भी यूज करते हैं, डेफिनेशन की क्या जरूरत है? सो मैडम बोल रही है डेफिनेशन की जरूरत तब होती है व्हेन यू वांट टू डिफाइन और डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग. फॉर एग्जांपल, ड्रिजल और क्लाउड ब्रस्ट, राइट? दोनों रेनफॉल का ही टाइप है, ठीक है? ड्रिजलिंग होना मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश होना, ठीक है? क्लाउड ब्रस्ट मतलब हैवी रेनफॉल होना, राइट? दोनों रेनफॉल ही है, बट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग दिस ड्रिजलिंग एंड क्लाउड ब्रस्ट. So we need to clearly define this drizzle and cloud burst to differentiate between them, right? So रायबांग नाम का एक स्टूडेंट है जो क्या बोल रहा है, इसमें डिफाइन करने वाले क्या बात है? अब्राहम लिंकन ने तो कहा था डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट? सो ये बच्चे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा था? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which government of the people, this government is by the people, the government is for the people, right or not? मैडम बोल रही है this is very beautiful definition, right? But we think ourselves, हमें किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फेमस है, ठीक है? ये डेफिनेशन क्या है, काफी ज्यादा फेमस है, बट वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट. व्हाई? बिकॉज इट इज फेमस, राइट? हमें कुछ अपना भी सोचना चाहिए, राइट और नॉट?
फिर one another student is saying that madam I already read about one definition that this democracy comes from the word democracia, in which demos means the people and cracia means rule, right? So democracy एक word है जो कि आया है एक वर्ड डेमोक्रेसिया से. दिस डेमोक्रेसिया वर्ड इज ग्रीक वर्ड, और अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं तो डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल. सो द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, राइट? सो मैडम क्या बोल रही है? इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे, राइट? बट इट इज नॉट दैट अ वर्ड ऑलवेज रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. ठीक है, मैडम क्या बोल रही है कि एक वर्ड जो हमेशा होता है वो हमेशा उस वर्ड का मीनिंग चेंज होता है. एज आई already told you in class 7th also that earlier during the time of 1300 AD, right? हिंदुस्तान का मतलब क्या था? हिंदुस्तान मीनिंग द समवेयर एरिया अराउंड दिल्ली, राइट और नॉट? इतना बड़ा ही. आज की डेट में हिंदुस्तान क्या है? पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट? So again here one example is given that earlier when this computer was invented, at that time the computer was used for computing, right? And the meaning of computer is computing, right? Computer का meaning क्या है? Computing. But nowadays what we are doing? What we are doing different types of word writing, designing. ठीक है? We are listening music, we are watching films, right? So word itself cannot give a perfect definition, right? So बच्चे एग्री कर गए. दैट मीन्स नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. हम देखेंगे डेमोक्रेसी क्या है. सो वी विल स्टार्ट दिस डेमोक्रेसी विथ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट? सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by people. So this definition all of you know, right? अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें, जो सिंपल डेफिनेशन है, it allows us to separate democratic country and non-democratic country. For example, we can find out कि एक country democratic है या monarchy है. What is the meaning of monarchical country? Monarch means क्या होता है? जहां पर कि किंग का रूल चलता है, राइट? और डेमोक्रेसी मतलब जहां पर पीपल इलेक्ट करते हैं. Now the question is, if we use this definition, we can easily differentiate between the monarchy and democracy, right? हम सिंपल सा देखेंगे कि यहाँ पर जो किंग है वो हेरिडेटरी है, उसको लोग नहीं चुन रहे हैं, तो ये मोनार्की हो गया. यहाँ पर जो रूलर है वो पीपल इलेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ डेमोक्रेसी. बट this simple definition is not adequate, right? For example, do you know that the king of Saudi Arabia, right? The king of Saudi Arabia is elected by the people. ठीक है? सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वहां पर जो रूलर होते हैं उसको कौन चुनता है? पीपल चुनता है. बट देयर इज अ कंडीशन. क्या कंडीशन है? कि पीपल हैव टू चूज ओनली दोज पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम रॉयल फैमिली, राइट? इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया में जो राजा का फैमिली मेंबर है उसी में से लोगों को चुनना पड़ता है किसी एक को फॉर रूल. सो कैन वी से इट इज अ ट्रू डेमोक्रेसी? नो. इफ वी कंसीडर ओनली दिस डेफिनेशन, देन हम क्या करेंगे? हम ये कह देंगे कि यस, सऊदी अरेबिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. इट मीन्स दैट वी हैव टू डिग मोर डीपर इनटू द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए. व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी, राइट? सो हियर some of the definition or some of the lines quotations are given here, right? Democracy के बारे में think about it, right?
Brabant went back home and collected some of the most famous quotation on democracy. देखो यहाँ पर पहला कोटेशन उसने क्या कलेक्ट किया है? डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन oppressor, right? I'm not going to explain these all lines, right? Think about it a little bit, right? You have to learn civics, to learn this book, right? You have to stimulate your mind, right? You have to know how to think, right? Democracy consists of choosing your dictators. So democracy में क्या हम अपना dictator choose करते हैं? After they have told you what you think it is you want to hear, right? Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary. So all these are the quotation. Read it, right? और यहाँ पर देखो ये कार्टून में क्या हो रहा है? The cartoon was drawn when election were held in Iraq. इराक में जब इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, in the presence of United States, right? That means जो अमेरिका है, अमेरिका के प्रेजेंस में वहां पर मिलिट्री फोर्स है. You can see here these are the military forces of America, right? और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? इराक में डेमोक्रेसी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? ठीक है. फाइंड आउट ये एम का मतलब क्या है, ये बिगर एम का क्या मतलब है, राइट? और ये लोग, यू कैन से कि इस कार्टून से आप क्या समझ रहे हो, थोड़ा सा सोचना, थिंक अबाउट इट, राइट? कल हम देखेंगे इस कार्टून के बारे में, डिस्कस करेंगे. ओके. सो जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ा, राइट, दैट डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by people. This question raise many questions, right? एक डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं, ठीक है. ये बताने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आए होंगे, राइट? वो क्या सवाल है? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? रूलर्स कौन है, ठीक है? कौन सा ऑफिशियल्स उस कंट्री में इलेक्टेड होना चाहिए, कौन सा ऑफिशियल्स को चुन के भेजा जाना चाहिए, और कौन सा ऑफिशियल्स जो है नॉन इलेक्टेड होना चाहिए, राइट और नॉट? देन किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए? अगर इलेक्शन हो रहा है तो किस तरह का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स? कौन से ऐसे लोग हैं जो कि रूलर को इलेक्ट करेंगे, ठीक है? कैन अ डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन्स राइट? क्या डेमोक्रेसी किसी तरह का राइट को डिनाई कर सकता है ऑफ सिटीजन्स, राइट? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, राइट? किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है? सो ऑल दिस क्वेश्चंस वी विल लुक इन दिस चैप्टर, राइट? सो डोंट वरी. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो यहाँ पर ध्यान से कार्टून दिया हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक एग्जाम्पल है सीरिया का, राइट? एंड इन सीरिया one person, right, what he is saying, he is a, I think he is a military person, right? No entry before you fill that form and become a member in Al Baath party. Is that clear? So यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है उसको एंटर नहीं करने दिया जा रहा है. उसको क्या बोला जा रहा है कि आप तब तक नहीं सीरिया में रह सकते हो जब तक कि आप अलबाथ पार्टी, वहां की एक नेशनल पार्टी थी, उसका मेंबर न बन जाओ, राइट? सो सीरिया इज ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री. कहां पर है ढूंढ के देखना आप मैप पे आज. द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल allies आर द ओनली पार्टी अलाउड इन द कंट्री. यहाँ पर क्या है, सिर्फ यही दो पार्टी, कुछ पार्टी अलाउ है. बाथ पार्टी मेन पार्टी है, राइट? डू यू थिंक दैट दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना एंड और मैक्सिको? चाइना पे अप्लाई होता है? यस, चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, राइट? ओके. सो in this book you will see a lots of cartoon like this, right? So you need to open up your mind to understand these cartoons. Okay.
So with definition there are certain features. Now we are coming to the condition कि rulers are elected by the people with certain conditions, right? So condition क्या क्या है? पहला condition है major decision by elected leaders, free and fair electoral competition, one person one vote one value, rule of law and respect for right. So let's look one by one. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं क्लैरिफाई कर दूं. अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, हमने दो ही चीज देखी है. द फर्स्ट वन, दैट देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. क्या है डेफिनेशन डेमोक्रेसी का? इट इज अ कंट्री वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल प्रोवाइडेड विद सर्टेन कंडीशंस. ये चार कंडीशन है, हमने यही दो चीज पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा. अंडरस्टूड? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. देखो, जो पहला टॉप मैंने बोला, पहला कंडीशन क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल प्रोवाइडेड विथ द फर्स्ट कंडीशन दैट द मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. दैट मीन्स इन दैट कंट्री जो मेजर डिसीजंस है वो कौन लेगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट? सो हियर यू कैन सी द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के बारे में हम देखेंगे. डू यू नो दैट after getting independence in 1947, right, Pakistan faced 3 times military coup. मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है? 3 बार ऐसा हुआ कि वहां की आर्मी ने पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां की जो डेमोक्रेसी है, राइट, उसको हटा के मिलिट्री का राज हो गया. मिलिट्री का राज हो गया मतलब वहां का जो जनरल होता था उसने इलेक्टेड लीडर को हटा के खुद को अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया. देखो एक एग्जांपल यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ का है, राइट. व्हाट हैपेंड इन अक्टूबर 1999, राइट? दिस जनरल परवेज मुशर्रफ हु वाज द हेड ऑफ आर्मी चीफ इन पाकिस्तान, इसने क्या किया, वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, राइट, उसको हटा के खुद अपने आप को वहां का गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया, राइट. He overthrew the elected government and declared himself chief executive of the country, right. Later he designate himself as the president, right. अपने आप को क्या बना दिया? प्रेसिडेंट. 3 साल तक वो प्रेसिडेंट होने के बाद because of the pressure of people, right, he was ready for a referendum. So 3 साल जब उसने रूल किया तो लोग उनको अपोज करने लगे. सो 2002 में उसने क्या कहा कि ओके, आई विल ऑर्गेनाइज अ रेफरेंडम. रेफरेंडम क्या होता है? उन्होंने बोला आई विल आस्क टू द पीपल दैट वेदर आई शुड बी द प्रेसिडेंट और इंडिया ऑफ पाकिस्तान और नॉट. अगर लोग कहेंगे हाँ तो ठीक है, बोलेंगे नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, राइट. सो जब रेफरेंडम हुआ तो उसको 5 साल का प्रेसिडेंटशिप मिल गया, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज की how the people granted him 5 year of presidency. So कहा जाता है कि वहां पर जो रेफरेंडम हुआ था वो ऑन द बेसिस ऑफ मैल प्रैक्टिस हुआ था, फ्रॉड हुआ था वहां पर, ठीक है. प्रेसिडेंट ने कई सारे बूथ कैप्चर कर लिए थे. सो इट मीन्स दैट जैसे ही वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बना, इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order. सो उसने एक ऑर्डर जारी किया. ये ऑर्डर क्या था हम इसके बारे में देखेंगे. Okay, so this legal framework order, it is saying that president can dismiss the national and provincial assembly, right. whatever assembly was there, जो भी वहां की पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है, राइट. ऑल द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट, जो वहां की कैबिनेट थी, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे या फिर जो मिनिस्टर्स थे, दैट कैन बी सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राइट. ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या था? इट इज अ मिलिट्री बॉडी, राइट. वहां की जो आर्मी थी उसकी एक बॉडी थी जो किसके काम को देख रही थी? द इलेक्टेड मिनिस्टर्स, जो लोगों ने चुना था जिनको, उनका काम कौन देख रही थी? उनको सुपरवाइज कौन कर रहा था? आर्मी के लोग,
राइट और नॉट? इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। देखो इलेक्शन हो रहे थे वहां पर, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए नहीं, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसके लिए इलेक्शन हो रहा था, राइट? बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स, राइट? सो जो फाइनल पावर था वो किसके पास था? मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, राइट? So can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Can we say? No. Right or not? Why? Because although he is got elected, but this was on the basis of malpractice. उसने क्या किया? मिलिट्री ऑफिसर ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, राइट? एंड सम पीपल आर गॉट इलेक्टेड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। सम पीपल हु वर मिनिस्टर्स, दे वर इलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन, राइट? बट the decision taking power was with some dictator, right or not? So पहला कंडीशन क्या है कि in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people, those who are elected by the people। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में किसके पास है फाइनल पावर? जनरल मुशर्रफ, राइट और नॉट? जो कि फ्रॉड करके अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था, राइट? So this is the very first feature you need to remember, right? Okay, thanks for today. Next class we will look at about it tomorrow. Thank you.